Indigenous theme is leaving no one behind. Indigenous people call for new social contract. In that regards, the Thansa is very much relevant, and today Maharaj will brief the success of that leaving no one behind, but bringing everyone together in the front. So may I call upon Maharaj to kindly brief the media on this very special occasions of the 100 milestone achievement. Punkaham to everyone. I want to first of all extend my heartfelt gratitude, and I would like to extend my best wishes to TSF, Tripura Students Federation, for joining the movement for the Greater Tripura Land. Greater Tripura Land is a movement where we want every Triprasa, every individual who may not even be a Triprasa, who believes in the concept of a state which had a great history, a great future, a flourishing career, and a wonderful bonhomie between friends, communities, irrespective of religion and ethnicity. I'm very happy because I've been associated with TSF since 2002. When I was not even in Tripura, I have worked with TSF, and after 19 years, TSF and our organization Tripura Motha have jointly decided to fight for Greater Tripura Land movement. TSF has a great history. It was formed in 1968, 67, with an ideology to improve upon the Triprasa students. And let me tell you that till the time we do not come together for the benefit of our Dopha, our community, we will always suffer. TSF has its units not only in Tripura, TSF has its units all over India. They also have the unit outside India. And I will appeal to all of these units outside Tripura and outside even India, which are in some are there in Bangladesh as well, to morally and mentally and physically support us in a constitutional fight for Greater Tripura Land. This year, the World Indigenous Day theme is Leave No One Behind. And I don't want to leave anyone behind in our movement, be it any political party, be it any social organization, because I also realize that the last fight for our existence will be now. If this time we do not put up a united effort, forever our existence will be over. So I appeal through you all, through the media friends, to please understand that ours is not a political electoral fight. Ours is a movement for our constitutional right and our rightful constitutional right, which have been denied to us. And whenever it's a student organization or a women's organization, I'm very happy that if they join with us, I'm very happy. I'm also very happy to say that we have not only the TSF president, Bishu here, John here, Bipul here, many other leaders from TSF here. We have the former NESO, current NESO Vice Chairman Upendra Debarma, NESO meaning North Eastern Students Organization. We have Bisujit Poloy, we have Sunil Debarma here. I'm very happy to also say that I have my CM who's somewhere there, and Dolly Riang, Purnachandra Debarma, Dolly Riang. I'm also very happy to see that we have YTF,
President Runil De Parma, Working President Pitor Dayung. And we have so many people. This is a good blend of youth, seniors, women, and Tiprasas. And our agenda is to sincerely not compromise and work for our final goal. If we succeed, this will not be the victory of TSF. This will not be the victory of Tipra Motha. If we win, this will be the victory for all Tiprasas. This is not the fight for one individual. This is not a fight for one organization. This is a fight for all the Tiprasas. And I know whether you are in CPM or Congress or IPFT or BJP, in your heart, I know that all of you secretly, privately want our Greater Tipra Land movement to be successful. Because this Greater Tipra Land is not for one organization, it is for all the Tiprasas. I'm very happy once again that TSF has joined us. I'm also very happy to see Aghor De Barma, Narendra De Barma here. Very happy to see NESO Chairman here, Upendra, NESO Vice Chairman Upendra here, and TSF leadership, central leadership. I would also like to request the media once more that Tipra Motha is an independent organization. We are not a B team of any political party. We are the A team for Tiprasas. वो टाइम ख़त्म हो गया कि रीजनल पार्टी कोई नेशनल पार्टी के लिए बी टीम होता था. हम लोग ए टीम है फॉर आवरसेल्व्स, फॉर द Tiprasas. तो दूसरे इश्यूज़ में हमें अननेसेसरी ड्रैग मत कीजिए. वो उनका प्रॉब्लम है. हमारा लाइन एक अलग है, एक इंडिपेंडेंट लाइन है और हम उस लाइन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले. इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन फ्रॉम द मीडिया, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम. Maharaj, how you will be celebrating the World Indigenous Day this year in ADC? Because this is the first time in the history of ADC that the council itself has decided to celebrate officially. आज तक 35 years में किसी ने भी वर्ल्ड इंडिजिनस डे ऑफिशियली काउंसिल से सेलिब्रेट नहीं किया है. हम लोग फर्स्ट काउंसिल में हम लोग पहली बार वर्ल्ड इंडिजिनस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इंडिजिनस का मतलब भूमिपुत्र, और हम लोग वर्ल्ड इंडिजिनस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. मुंगिया कामी में अपना प्रोग्राम होगा, खुमुलुंग में प्रोग्राम होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम होगा. नॉर्थ कंचनपुर से लेके, गोमती से लेके, ओम्पी से लेके, अमरपुर से लेके, कोरबुक से लेके, अम्बासा से लेके, अगरतला, खुआई, रामचंद्र घाट, टाकरजला, सब जगह में, सब जहाँ में हम लोग का ब्लॉक्स है वहाँ में हम लोग का सेलिब्रेशन होगा. और सेंट्रल हमने इस बार सोचा है कि हम लोग मुंगिया कामी में करें और खुमुलुंग में भी प्रोग्राम होगा. अगरतला में अनफॉर्चुनेटली यहाँ में क्योंकि कोरोना का रिस्ट्रिक्शंस है और परमिशन नहीं मिल रहा है, हम लोग नहीं कर सकते. लेकिन मैं होपफुल हूँ कि नेक्स्ट ईयर आप लोग हमारे संग अगरतला में भी प्रोग्राम के लिए शामिल हो सकेंगे. 19 तारीख को महाराजा वीर विक्रम का जन्मदिन है, उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं. और 23 तारीख अगस्त इज ADC डे. वी विल ऑल्सो सेलिब्रेट दैट. And we will also celebrate Independence Day. We are the first council to have started Jana Gana Mana in our council. Before that, nobody even thought of doing Jana Gana Mana. Nobody can call us anything. We are patriotic. We love our country. We love the people of our country. And we have a view. क्योंकि हमसे पहले किसी ने नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं कि हम आने वाले दिन में नहीं करेंगे. और गॉड विलिंग एक दिन आएगा कि हम लोग ग्रेटर तिपरा लैंड डे भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे. थैंक यू सर. अनदर थिंग महाराज, आप लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया है टू फुटबॉल कंपटीशन.
हम मेरे स्पोर्ट्स ईएम सुहेल देव वर्मा उसमें ज़्यादा आपको बता सकेंगे, हमारे सीएम भी यहाँ में है पूर्णचंद्र जमोतिया, वो बता देंगे। लेकिन ड्रग्स इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, कोई बात नहीं कर रहा है ड्रग्स के बारे। हमने ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर को भी अडॉप्ट करने का डिसीजन लिया है एग्जीक्यूटिव कमेटी में। ड्रग्स सीरियस प्रॉब्लम है और कोई भी फ्यूचर जनरेशन जिसमें वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ ड्रग्स will never be able to rise. So I think that it is very important that we combat drugs with sports. Yesterday the whole of India was very proud when Neeraj Chopra won the gold medal. We are also very proud. That's the role model we should do. Role models should be sports people. Role models should be musicians. Role models should be artists. Role models could be journalists. Not only politicians should be role models. I think the biggest problem in Tripura is we only look up at politicians and not other streams. I think the biggest role model, I mean when Deepa Karmakar won, when Somdev Burman won, when Saurabhi Debarma won the Indian Idol, we all looked up to them. And I'm very happy, I really would like to encourage sports and youth activities amongst our students and the new generation in the ADC. सर राजनीतिতে হিংসা এবং প্রতিহিংসাটা আপনি কিভাবে দেখেন? विक्रम के राज्य में ये जो पश्चिम बंगाल का जो पॉलिटिक्स शुरू हो गया है, बीजेपी वर्सेस तृणमूल, ये त्रिपुरा एक बैटल ग्राउंड हो गया है फॉर तृणमूल वर्सेस बीजेपी। ये बहुत दुख का बात है, कहीं में भी वायलेंस नहीं होना चाहिए और ये वायलेंस जो हो रहा है उससे पूरा त्रिपुरा का छवि खराब होता है। लेकिन जब तिपरा मोथा का वायलेंस हुआ पोस्ट पोल के बाद, तो सबने कहा कि हम लोग एंटी नेशनल्स हैं, क्योंकि जब तिपरासा फाइट करता है तो हम लोग एंटी नेशनल्स हैं, उग्रपंथी हैं। जब टू नेशनल पार्टीज या एक रीजनल और एक नेशनल पार्टी फाइट करते हैं तो कोई बोलता है कि राजनीतिक हिंसा, इसको भी आप एंटी नेशनल बोलिए। हम करेंगे तो एंटी नेशनल, वो करेंगे तो पॉलिटिकल हिंसा नहीं होगा। और कहीं में भी पॉलिटिकल हिंसा, कहीं में भी किसी को मारना, किसी को रोकना, वायलेंस से त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सबसे पीछे है इंडिया में, स्टेट्स में, क्योंकि हमने हमेशा राजनीति को सामने रखा है और कम्युनिटी को पीछे रखा है। हमेशा हमने नेता का बारे सोचा है और सोल्यूशन नहीं निकाला है। एंड दिस वायलेंस इज कंडेमेबल। महाराजा वीर विक्रम ने कभी नहीं सोचा था, मेरे माँ बाप ने कभी नहीं सोचा था कि त्रिपुरा आज इस स्थिति में रहेगा कि हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में वायलेंस होगा और इस वायलेंस से पूरा इंडिया में हमारा स्टेट का छवि खराब हो रहा है। और इस छवि को खराब करने के पीछे कौन है, हम लोग सब जानते हैं। Another question, Maharaj. Your new council has taken a decision to honor the Samaj Parties. So, and for state government also beneficiary selection क्या एक होगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे ओकराज हैं, जो हौदा है, जो चांताए हैं, कास्को है, वो लोग बेनिफिशियरी नहीं है। उनका अधिकार बनता है कि हम लोग उनको सम्मान दें। स्टेट गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था आज से 2 साल पहले, अभी तक 1 रुपया नहीं किया। हमने बाय सर्कुलेशन अपना ऑर्डर पास कर दिया है। हम लोग अगले महीने से ये डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली करेंगे और क्योंकि अगर अपना तिपरासा आइडेंटिटी और कल्चर को प्रिजर्व करना है तो पॉलिटिकल मायने से नहीं दिखना पड़ेगा। जो कम्युनिटी चूज करेगा, कौन उनका हौदा है, उनका ओकरा है, उनका आदोंग है, उन्हीं को हम देंगे। हम अपनी तरफ से किसी को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट करके किसी को बेनिफिट देने लगे उस दिन राजनीति शुरू हो जाता है। मैं चाहता हूं कि हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कल्चरल एक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक सम्मान दिया जाए और एक स्टाइपेंड दिया जाए। मेरे संग मेरे सीएम यहाँ में बैठे हैं, वहाँ में ईएम्स बैठे हैं। हमने डिसीजन लिया है कि एवरी community elder who has an elder in the traditional setup will be given a monthly stipend starting from 1st of September
और ये हमने खुद किया है। स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक डिसीजन लिया है लेकिन किया नहीं है। हमने डिसीजन भी ले लिया है, अमाउंट भी फिक्स कर दिया है और अब हम प्रोसेस भी शुरू कर रहे हैं और हमने टारगेट भी रख दिया है कि सितंबर से ये काम शुरू हो जाएगा। मैंने अपने तरफ से, क्योंकि 14 देवता में जो होता है वो रॉयल फैमिली की तरफ से भी होता है, मैंने उनको अपने तरफ से मैंने एक प्लान बनाया है। राजमाता भी त्रिपुरा में है, आने वाले दिन में उनका लिए भी मैं कुछ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देखिए त्रिपुरा को सब लोग बोलते हैं कि बैकवर्ड, तिपरासा इज़ नॉट बैकवर्ड, तिपरासा वॉज अ किंगडम, तिपरासा हैज़ अ हिस्ट्री, तिपरासा इज़ अ सिविलाइजेशन। तो अगर हम लोग अपने तिपरासा लोगों को इज्जत सम्मान, हमारे इंस्टीट्यूशंस को सम्मान नहीं करेंगे, जो ट्रेडिशनल सेटअप है, तो बाहर के लोग कैसे सम्मान करेंगे। इसके लिए ये जो कल्चर ख़त्म किया गया, कम्युनिस्ट ने ख़त्म किया ये कल्चर, क्लब को रिप्लेस करके आज जो हमारा सिस्टम इतना डिप्रिशिएट हुआ है क्योंकि एक पूरा मूवमेंट था कि हमारे पूरे ट्रेडिशनल सेटअप को ख़त्म किया जाए। आज इंडिया का जो सम्मान आता है वो सिर्फ आईटी से नहीं आता है, हमारे इतिहास से भी आता है। आज जो पूरा, अगर आप बंगाली कल्चर के बारे में बोलेंगे तो सिर्फ आज क्या हो रहा है उससे नहीं आता है, उनके इतिहास से आता है, उनके किताब से आता है, उनकी हिस्ट्री से आता है। अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो उनकी हिस्ट्री से आता है, आप जब इंग्लैंड जाएंगे तो उनका हिस्ट्री से आता है, आप अगर चाइना को देखेंगे तो उनकी हिस्ट्री से आता है, माओ से नहीं आता है। तो हमारा भी इतिहास है, हमारा भी एक कल्चर है, वेदर इट इज़ गालिब, वेदर इट इज़ कास्काओ, वेदर इट इज़ क्षत्रिय समाज, वेदर इट इज़ होदा, वेदर इट इज़ चांताई, वेदर इट इज़ चौधरी, वेदर इट इज़ anybody, we have to start respecting our traditional system, and that is something I am following up. और लास्ट बात है रिगार्डिंग पॉलिटिकल वायलेंस। ये जो पॉलिटिकल वायलेंस स्टेट में हो रहा है, मैं अपील करता हूं स्टेट गवर्नमेंट को टू काइंडली लुक इनटू इट and reduce the level of violence. पहले से इकोनॉमी खराब है, पहले से कोविड से सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम में है, और इस तरीके से वायलेंस होने से त्रिपुरा में कोई इन्वेस्ट भी नहीं करेगा, कोई बिजनेस भी नहीं आएगा। और इस वायलेंस से हमको क्या मिल रहा है? अगर इलेक्शन होना है 2023 में तो 2023 में बात कीजिए, लेकिन वायलेंस अभी से शुरू हो जाएगा तो नुकसान पॉलिटिशियंस को कभी नहीं होता है, कोई नेता को नुकसान नहीं होगा, नुकसान सिर्फ आम जनता का होगा। तो ये ड्यूटी बनता है, होम इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट देयर इज पीस एंड देयर इज लॉ एंड ऑर्डर। आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर, law and order has to be maintained in Tripura, and the image of Tripura has to be maintained also. And ये बात आप तिपरा मोथा से चेयरमैन मैं हूँ, ये आप बात छोड़ दीजिए कि अलायंस किसके साथ होगा किसके साथ नहीं होगा। हमारा एक डायरेक्ट लाइन है ग्रेटर तिपरा लैंड के लिए, और जो हमारे ग्रेटर तिपरा लैंड को अग्री करता है राइटिंग में दे, अगर नहीं देता है तो हम अकेले पूरे इलेक्शन में लड़ेंगे। आज का तिपरासा पैसे के पीछे, पद के पीछे नहीं भागेगा, तिपरा मोथा पैसे पद के पीछे नहीं भागेगा। वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, मुझे होम मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नहीं बनना है, मुझे ग्रेटर तिपरा लैंड चाहिए, और उस इशू में वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। वी वांट समथिंग इन राइटिंग फ्रॉम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हुएवर वुड लाइक टू कम इन फ्रंट एंड टॉक टू अस। They are trying to divide their organization and all. So what would be your message towards the people so that they don't control Nagarik Suraksha Manch, control Amra Bangali, and you will not have the other side misguiding other people. It takes two hands to clap. It takes two hands to clap, and we know who are the people who are provocating,
Has the murderer of Biswajit Dev Burma been arrested? Has the murderer of Mantri Lal Kaiping been arrested? Has Pindulal Chakma's murderer been arrested? So, जो माधवबारी में हुआ उसका कोई जस्टिस हुआ है अभी तक? तो my message is, there is wrongs on both sides. But if you can control these elements which are provocating one society, the other society will react. I have always spoken for peace, whether it is Tiprasas or Bengalis, Chorais or Riangs, Muslims and Hindus and Christians. We are secular. We believe in no discrimination of any religion. We believe in inclusivity. But the government has to now stop these organizations which are fringe elements, which are creating ethnic divide between communities. Tipra Mota has not spoken against any community. We have only spoken for the constitutional rights of the Tiprasa people. We have not spoken against any community. जब से हम power में आए हैं, not one act of violence has happened against any non-Tiprasa community in ADC. So ये जो वहम फैलाया जाता है, ये एक एलिमेंट है त्रिपुरा में जिनका राजनीति रहता है. जब कोई तिपरासा डिमांड करे तो उनको कम्युनल बनाओ, जब कोई और करे तो उसको राष्ट्रवादी बनाओ. इसको कर्टेल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए. थैंक यू.